اسلام آباد مارچ کی تیاری مکمل ہے، حکومت کو نہیں پتا میں نے کرنا کیا ہے۔ جب بھی ہم لانگ مارچ کا نام لیتے ہیں ان کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ قوم ڈاکوؤں کا مقابلہ کرے گی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا راولپنڈی میں ورکرز کنونشن سے خطاب، بولے ہمارا مارچ پاکستان کا سب سے بڑا احتجاجی مارچ ہوگا، ہم اسلام آباد کی طرف آئیں گے۔ شہباز شریف، رانا ثناء اللہ، تم الٹے بھی لٹک جاؤ گے تو کچھ نہیں کر سکو گے۔ ہم سیاست نہیں ملک کو آزاد کرنے کے لیے جہاد کر رہے ہیں، ہمارے فون ٹیپ اور نوکروں کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ادھر عمران خان کا آڈیو لیک کی تحقیقات کے لیے عدالت جانے کا اعلان، ٹویٹر پیغام میں کہا آڈیو لیکس قومی سلامتی کی سنگین خلاف ورزی ہے، وزیراعظم ہاؤس اور آفس کی سیکیورٹی پر سوال کے نشان ہے۔ بحیثیت وزیر اعظم میری گلی میں لگی محفوظ ٹیلی فون لائن بھی محفوظ نہیں۔ مریم نواز کے عمران خان پر تاک تاک کر وار، ٹویٹر پیغام میں لکھا تم جب وزیر اعظم تھے تو اپنے مخالفین کی ریکارڈنگز کو جائز قرار اور حلال کہتے تھے، آج اس لیے تمہاری بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ تم کہتے تھے ایجنسیوں کا تو کام ہی یہی ہے، تمہیں اصل تکلیف یہ ہے کہ تمہیں نہ اب تمہارے مطلب کی JIT ملے گی نہ تمہارے آنکھوں کانوں والی ایجنسیاں۔ وزیر اعظم ہاؤس سے فون ہیک کرنے کی تحقیقات، خفیہ ادارے نے 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ایک شخص کا تعلق راولپنڈی کے تعلیمی ادارے، دوسرے کا وسطی پنجاب کے شہر سے ہے۔ دونوں گرفتار افراد سے تحقیقات شروع، اہم انکشافات کی توقع۔ دونوں افراد وزیر اعظم ہاؤس کے سیکیورٹی اسٹاف سے رابطے میں تھے، سیکیورٹی عملے کی بھی جلد گرفتاری کا امکان۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو اشتہاری قرار دینے کی درخواست مسترد، راولپنڈی کی عدالت کا رانا ثناء اللہ کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم، دوبارہ وارنٹ گرفتاری جاری، ملزم چھپ رہا ہے، گرفتاری کی کوشش کی، اب اشتہاری ڈکلیئر کیا جائے۔ تفتیشی افسر کی استدعا، ابھی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ایک دم اشتہاری کیسے قرار دیں؟ جج نے ریمارک دیے کہ دوبارہ اسلام آباد جاؤ، ملزم کو گرفتار کر کے عدالت پیش کرو۔ اینٹی کرپشن پنجاب کا کہنا ہے اسلام آباد پولیس نے ناروا رویہ اختیار کیا، ہماری گاڑیاں بھی تھانے سے باہر نکال دی، ٹیم کی آمد اور روانگی بھی ریکارڈ پر نہیں ڈالی۔ ادھر اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ تھانے میں باقاعدہ وارنٹ گرفتاری وصول کیے گئے، اینٹی کرپشن نے ریکارڈ دینے سے انکار کر دیا، تھانے میں آمد اور روانگی کا باقاعدہ اندراج بھی کیا گیا۔ اسلام آباد پولیس کا اینٹی کرپشن پنجاب کے خلاف قانونی کارروائی کا عندیہ۔ دفعہ 144 کے خلاف PTI کی درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ درخواست گزار اسد عمر کیسے متاثرہ فریق ہیں، کیا انہیں پرامن احتجاج کے لیے اجازت لینے سے کسی نے روکا ہے؟ بابر اعوان نے موقف اختیار کیا کہ دھرنا کیس میں سپریم کورٹ نے طے کر دیا پرامن احتجاج کے لیے اجازت لینا ہوگی، ہفتے سے زیادہ دفعہ 144 نافذ نہیں کی جا سکتی، ریلی جلسہ یہ سب کا بنیادی اور آئینی حق ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ ایسا نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی کو اتنا فری ہینڈ دیا جا سکتا ہے۔ اس جماعت کی 2 صوبوں میں حکومت ہے، کیا ادھر کبھی دفعہ 144 نافذ نہیں کی گئی؟ لا اینڈ آرڈر کا معاملہ ایگزیکٹو نے دیکھنا ہے، جس میں عدالت کبھی مداخلت نہیں کرے گی۔ اس سے زیادہ ظلم نہیں ہو سکتا کہ ملک میں وسائل موجود ہوں اور ہم فائدہ نہ اٹھائیں۔ تھر میں 175 بلین ٹن کوئلہ ہے جس سے گیس بنا سکتے ہیں، 100% تھرکول سپلائی کیا جائے تو بلین ڈالرز بچ جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تھرکول مائنز فیز 2 کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا شاہد فقہ نواسی، مصدق ملک، احسن اقبال، فواد حسن فواد بھی مل کر پالیسی بنائیں، مل کر کام کریں گے تو کام بنے گا، منصوبے سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ پہنچے گا۔ تھر میں ایک وقت تھا زندگی گزارنے کے آثار نہیں تھے، آئندہ سال تک تھر کے کوئلے سے ملک کی معیشت میں غیر معمولی اضافہ ہوگا، اس وقت لگنے والے کوئلے کے پاور پلانٹ سے آلودگی نہیں ہوگی، تھر میں پیدا ہونے والی بجلی 10 روپے فی یونٹ ہوگی، تھر کول کو پوری طرح پروموٹ کریں تو پاکستان کا زر مبادلہ بچے گا۔ وزیر اعظم نے کول مائن کمپنی کی توسیع افتتاح کر۔ تھر کے ماڈل کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو بدل سکتے ہیں، تھر پار کر کے ریگستان سے ہم فیصل آباد کی انڈسٹری چلا رہے ہیں، دسمبر میں ایک اور پاور پلانٹ کا افتتاح ہوگا، ہم چاہتے ہیں کہ شہباز سپیڈ کے ساتھ یہ کام چلے۔
वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का थरकोल माइंस 2 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा मंसूबे से मुल्क की मईशत को फायदा होगा, तरक्की के सफर को अब और आगे लेकर जाना है। मुराद अली शाह ने कहा कि थर के कोयले से पूरे पाकिस्तान को रोशन करना है। पाकिस्तान की जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक थर में 175 बिलियन टन कोयला मौजूद है। 2022 के आखिर तक इस पावर प्रोजेक्ट में बिजली पैदा करने की सलाहियत बढ़कर 2640 मेगावाट हो जाएगी। थरकोल पाकिस्तान की मईशत का गेम चेंजर है। बिजली की पैदावारी मद में खजाने को $2 अरब का फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। मौके पर इख्तियार किया कि तरमीम में नैब का इख्तियार 1985 से खत्म कर दिया गया। दायरा इख्तियार माजी से खत्म होने पर प्री बारगेन का हुक्म भी मंसूख हो जाएगा। एक शख्स प्री बारगेन की किस्तें क्यों अदा करेगा जब उसे मालूम हो कि वो नए कानून से मुस्तफीद हो सकता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि रिक्शे और फलूदे वाले अकाउंट्स किसके थे। ख्वाजा हारिस ने बताया कि ये जाली अकाउंट्स और अब्दुल गनी मजीद और उनकी कंपनीज के बेनामीदार थे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि इससे तो ये साबित हुआ कि प्री बारगेन के बाद भी मुल्जिम का इतराफ जुर्म तस्वुर नहीं होगा। तरमीम से लगता है जो रिकवरी हो गई वो रहेगी, मजीद नहीं हो सकती। अगर कमाई का जरिया सामने नहीं आता तो जुर्म अपनी जगह रहता है। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। ग्यारह हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को होगा या 3 माह बाद। हुकूमत की 3 माह के लिए इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। इंतखाबात मुलतवी करने के हवाले से खत का जायजा लिया। मजीद मुशावरत के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध तलब। तीनों सूबों के आईजीज को भी इलेक्शन कमीशन ने कल तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस को भी बुला लिया गया। इलेक्शन कमीशन कल 2 बजे होने वाले इजलास में अहम फैसले करेगा। पेशावर में प्राइमरी स्कूल असातिज़ा का असेंबली चौक में धरना। यूनियन सदर समेत गिरफ्तार अफराद की रहाई का मुतालबा। मुजाहिरीन का जेर हिरासत असातिज़ा की रहाई तक हुकूमत से मुज़ाकरात करने से इनकार। एहतजाज के बायस ट्रैफिक रवानी मुतासर। असातिज़ा पर लाठी चार्ज के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तहरीक इल्तवा जमा। खैबर पख्तूनख्वा में तालीम दुश्मन अनासिर फिर सरगर्म। सवात की तहसील 4 बाग में तलबा की वैन पर फायरिंग। गोलियां लगने से वैन ड्राइवर जाँ बहक हो गया। 2 तलबा जख्मी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। वाक़े के खिलाफ असातिज़ा, तलबा, ड्राइवर के वरिसा का मैंगोरा में एहतजाज, नारेबाजी। लोअर दीर में 2 ग्रुप की फायरिंग की जद में आकर वैन सवार 4 तलबा जख्मी हो गए। दोनों वाक़यात की तहकीकात शुरू। मुल्जिमान की तलाश के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन। 18वीं आईनी तरमीम में तीसरी दफा वजीर आजम बनने के लिए नवाज शरीफ ने पंजाब के हकूक का सौदा किया। कालाबाग डैम से दस्तबरदार हुए और फिर कौमी वसाइल को सूबाई मामला करार देकर पंजाब में इंडस्ट्री को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। ये सियासी नौटंकी बाज है, पूरा पाकिस्तान इन्हें मुस्तरद करता है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान में इदारों की कारकर्दगी पर रोजाना ही रोना आता है। 16 अक्टूबर को मुल्क में 11 सीटों पर इलेक्शन है। लाखों लोगों को पता ही नहीं कि वोट डालने आना है या इलेक्शन कमीशन रोक देगा। इससे पहले 2 दफा ये इलेक्शन ऐन वक्त पर रोक दिए गए। बाबुओं ने बैठकर फैसले करने हैं, न लोगों की परवाह, न ये कि इन हलकों में करोड़ों रुपए खर्च हो चुके। इस बेहिस्सी ने सारे निजाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। हम रियासत में खून खराबा और इसे कमजोर नहीं देख सकते। साजिशी एक नहीं, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर समेत दीगर खिलाड़ी भी शामिल हैं। इदारों को कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक इन पर हाथ डालना चाहिए। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं वफाकी हुकूमत की तैयारी को देखकर शायद इमरान खान ने अपना इरादा बदल लिया है। 250 सफ़ात की किताब को खोलने का मौका ना दिया जाए। पैराशूटर गोद में खिलाने बंद किए जाएं। पाकिस्तान के अंदर आज नवाज शरीफ सोच और विजन की जरूरत है। हकीकी अवामी क़यादत ही मुल्की मसाइल हल कर सकती है। अमरीकी करेंसी मुसलसल तनज़ली का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.95 सस्ता, 217 रुपए 97 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 सस्ता होकर 220 रुपए का हो गया।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 126 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 42,211 पॉइंट्स पर बंद। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 15% बरकरार, स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। स्टेट बैंक का कहना है कि हालिया सैलाब से मुआशी मंजरनामा तब्दील हो गया। ग़िज़ाई अजनास की रसद में खलल से महंगाई की शरह बुलंद और ज़्यादा अरसे तक बुलंद रह सकती है। सैलाब के बाद मुआशी नमू के मजीद सुस्त होने का इम्कान है। अगस्त और सितंबर में जारी खाते के खसारे और तिजारती खसारे में कमी आई है। सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज का फैलाव जारी। खैरपुर में बच्चा और खातून गैस्ट्रो से इंतकाल कर गई। शहर में अमवात की तादाद 305 हो गई। कंबर में भी मलेरिया ने खातून की जान ले ली। कनकोट में सैलाबी पानी बीमारियां फैलाने लगा। रोजाना 100 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। कई मकामात पर अभी 4 से 5 फीट पानी मौजूद। दादू, सेवन, लाड़काना, नवाबशाह और दीगर इलाकों में भी वबाई अमराज ने मुश्किलात बढ़ा दी। मुतासरीन कैंप्स में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सर्द मौसम का खतरा भी सर पर मंडलाने लगा। मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने भारतीय हैकर्स के निशाने पर हसास डेटा चोरी करने की कोशिश। पीटीए ने अलर्ट जारी कर दिया। एडवाइजरी में कहा गया है कि हैकर्स का ग्रुप फिशिंग ईमेल्स भेजकर अपने मॉलवेयर को फैलाता है। सरकारी वेबसाइट्स की तर्ज की जाली वेबसाइट्स के लिंक भेजे जाते हैं। अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और वेबसाइट्स की 24 घंटे निगरानी की जाए। मुलाजिमीन की फिशिंग ईमेल्स और सोशल इंजीनियरिंग पर तरबियत करें। ईमेल में पुरकशिश मवाद और नामालूम लिंक से बचें। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस ईमेल एड्रेस को फौरी रिपोर्ट करने की हिदायत। पाकिस्तानी बैटर मोहम्मद रिजवान आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ करार। मोहम्मद रिजवान को सितंबर के महीने का आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द ईयर करार दिया गया। रिजवान T20 रैंकिंग के नंबर 1 बैटर भी हैं। उन्होंने भारत के अक्षर पटेल और ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन को पीछे छोड़ा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान का शेड्यूल जारी। कीवीज टीम 2 टेस्ट, 8 वनडे और 5 T20 खेलने 2 मराहिल में पाकिस्तान आएगी। पहले मरहले में 27 दिसंबर से 15 जनवरी तक 2 टेस्ट और 3 वनडे होंगे। तीनों वनडे आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा हैं। सीरीज का पहला टेस्ट 27 से 31 दिसंबर तक कराची में, दूसरा 4 से 8 जनवरी तक मुल्तान में होगा। 3 वनडे 11, 13 और 15 जनवरी को कराची में खेले जाएंगे। दूसरे मरहले में टीम 13 अप्रैल से 7 मई तक पाकिस्तान में 10 वाइट बॉल मैचेस खेलेगी। 4 T20 13, 15, 16 और 19 अप्रैल को कराची में होंगे।